ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਗਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਜੋੜੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਜੋੜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲੋਚਨ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਜੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨਗਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਭਾਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਮਕੇਗਾ। ਸੋ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਉਹ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਟਾਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 286 ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੀਨਸ ਬਰਾਊਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਫਰਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੱਕ ਲਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਆਪ चिट्टे क्यों पहनते। महाराज जी ने कहा कि साधु और संत में बहुत अंतर है, साधु और संत में बहुत अंतर है। हम सफेद पोशाक पहनते हैं, मामूली सा भी इसमें दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, तो वो फौरन नजर आ जाता है, महसूस हो जाता है कि इसमें धब्बा लग गया है, और उस धब्बे को हम दूर कर सकते हैं। रंगदार कपड़ों में
बहुत दाग लग जाते हैं जो खुद को, दुनिया को नहीं, खुद को भी नहीं नजर आते। देखो कितना खूबसूरत जवाब है। वो कहते हैं दुनिया को तो क्या, खुद को भी नजर नहीं आते। तो रंग के कपड़ों में जो दाग हैं वो छुप जाते हैं, इसलिए हमने सफेद पहना है। वाह। फिर सिंह साहब ने पूछा आप कौन है? साधु है ना, संत? हजूर साहब ने फरमाया मैं तो अपने परमात्मा की बनाई खलकत का सेवादार दास, मैं अपने आप को दास समझता हूं। फिर सिंह साहब बोले आपको कई रूप में लोग मानते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हुजूर साहब ने कहा कि ये तो उनकी भावना है, सेवक की भावना है। वो जिस रूप से हमें देखता है उसी रूप से हमें पुकारता है। सिंह साहब बोले जिस तरह आपने प्रेम लड़की को ठीक किया जो अपाहिज थी, डिसेबल थी, चल नहीं सकती थी, और कितने मरीज आए जिनका लाइलाज था तो आपने उनको दुरुस्त किया। तो ऐसे और भी कितने मरीज होंगे जिनको आपकी जरूरत है। तो आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते कि अगर हम अखबारों में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करें तो बहुत फायदा हो सकता है, बहुत लोग आ सकते हैं। तो जैसे महाराज जी कहते थे कि हमने हजूम इकट्ठा नहीं करना, हमने यहाँ ये नहीं दिखाना कि कितने नंबर हमारे यहाँ आए हैं या कितने लोग हमारे आए, ये देखो। कहते नहीं, हमने तो उनको लाना है जो हमारे मुरीद हैं, जो हमारी माला के मनके हैं। सेवक और भीड़ में बहुत फर्क होता है। आप जहां मर्जी, जैसे इंडिया में आप कहीं भी सत्संग कीर्तन और माता की चौकी जगराता रख लो तो वहां बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि वहां लंगर होता है, पेटे सुनी घर चले गए। तो आप उनको अपने सेवक नहीं कह सकते। सेवक वो है जो आपके साथ आपकी मर्यादा जिस मिशन में हो उसके मुताबिक चले, उसके सूलों पे चले, उसको माने, चाहे उसको उसके बाद कुछ मिले चाहे ना, वो रेगुलर हो जाए, वो सेवक है। सेवक वो नहीं जो आया और चले गया, फिर भी उसको वही चीजों पे, वही मूर्तियों पे विश्वास है जिसपे वो पहले करता है, तो वो सेवक नहीं है। तो सेवक आम सेवक में बहुत अंतर है, उसमें बहुत अंतर है। फिर हजूर ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट आप बोलते हो, एडवर्टाइजमेंट तो वो लोग करते हैं जिसकी दुकान का सौदा हल्का होता है। ये महाराज दर्शनदास ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं जिनकी दुकान का सौदा हल्का होता है, मींस उनका जो माल है अच्छा नहीं होता। हमें अपने माल पर पूरा भरोसा है, हमें अपने मालिक पर, अपने मिशन पर पूरा भरोसा है। यहाँ तो मरीज आते हैं और ठीक होकर खुद मुरीद बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो हजूम आए, जो आए वो बाद में मुरीद बन जाए, मुरीद सेवक, पक्का सेवक बन जाए। तो यही हजूर ने कहा कि वो मरीद मरीज बन के आते हैं और मुरीद बन जाते हैं। संत शेर होते हैं, सिवाय परमात्मा के वो किसी से नहीं डरते, किसी का भय नहीं रखते, बुराई से दूर रहते हैं। हम बोलते हैं कम, खाते हैं कम, सोते हैं कम और कहते हैं कम। ये महाराज जी ने कहा कि संतों में क्या होता है, संतों की क्या फितरत होती है। संत सबको एक पलड़े में तोड़ते हैं, किसी को ज्यादा और किसी को कम ये नहीं समझते। संतों के दरबार में हर कोई एक ही होता है। जैसे लंगर घर में जब जो आते हैं लंगर छकने के लिए, वहां ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, इसलिए सब नीचे बैठ के एक पंगत में लंगर छकते हैं ताकि आप में मतभेद निकल जाए। ये नहीं कोई अच्छा है उसको आपने कुर्सी पे बैठा के लंगर छका दिया, जो नहीं ठीक उसको उधर छका दिया, जहाँ जो पैसे वाला उसको अलग से छका दिया, ये नहीं। संतों के दरबार में सबका एक सम्मान होता है, इसलिए सब संगत को एक साथ लंगर छकने की हिदायत देते हैं कि आप में वैर विरोध, दूत प्रीत, ऊंच नीच सारी
निकल जाए। सबसे पहले ये कहते हैं इस स्कूल का, सबसे पहले इस स्कूल का ये मेन रूल है। सिंह साहब ने कहा, लेकिन जग में रहने के लिए माया बहुत जरूरी है। हजूर साहब ने जवाब दिया, माया तो संतों की दासी है, माया तो संतों की दासी है, चरणों में रहती है। आंखें बंद करके देखो, क्या बात। तो कहते हैं कि सिंह साहब ने ऐसा ही किया, आंखें बंद करी, हजूर ने उनकी तरफ देखा और उन्होंने आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर आंखें बंद करी, हजूर साहब बातें करते रहे लोगों के साथ, और आंखें खोलते ही हजूर साहब को देखा। फिर सबको बताया कि इसके चरणों में माया के कई भंडार मौजूद हैं। महाराज ने उसको बता दिया कि जिस माया की तू बात करता है वो तो हमारे आगे पीछे रहती है, चरणों में रहती है, चरणों में हमारी दासी है। तो उसने कहा कि इन बाबा के चरणों में माया के कई भंडार हैं। सिंह साहब ने अपने दोनों हाथ जोड़कर हजूर साहब के सामने खड़े होकर बोले, जिस तरह से आपने मेरी आंखों से पर्दा हटाया है, कृपा करें अब मुक्ति का रास्ता भी दे। सो ये उन्होंने महाराज जी के आगे फरियाद करी। दीनदयाल हजूर साहब ने उनको नाम दान दिया और फरमाया, अब इसकी कमाई कर लो, काम आएगी। जैसे मैंने पहले कहा था, सेवक बड़ा नहीं, सेवा बढ़नी, कर्म बड़ा है। अगर आपका कर्म बड़ा नहीं है तो आप जितनी मर्जी सेवा कर लो, उसका कोई अर्थ नहीं। सो आपका कर्म, कर्म कमाओ, तो फिर भगवान आपको फल बख्शेगा, लेकिन फल की इच्छा ना रखे। सो ये महाराज जी ने सिंह साहब को अपनी मेहर कृपा करके दिखाया कि कैसे जो माया है, जो संत माया के पीछे भागते हैं वो असली संत नहीं हो सकते। क्यों? कि माया संतों की दासी होती है और संतों के चरणों में रहती है। ये उन्होंने सिंह साहब को भी दिखा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि संत महात्मा का जो पूर्ण होते हैं उनको कहीं एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनके मुरीद खुद ही आते हैं। तो ये कितनी बड़ा लेसन है जो महाराज दर्शन दास जी ने कहा। तो इसके बाद महाराज जी ने टाटा नगर से जाना था। तो कहते हैं कि उस दिन जब टाटा नगर से रेलवे स्टेशन आए तो ऐसा माहौल था जैसे कभी प्राइम मिनिस्टर ने रेलवे स्टेशन पे उतरना होता है तो वहाँ हजूम होता है, लोग क्या कहते हैं, लोगों की भीड़ होती है। तो लेकिन जब महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी वहाँ जा रहे थे तो लोगों की आंखों में आंसू थे, उदासी थी, क्योंकि महाराज जी ने उनको ऐसा एक प्यार दे दिया था ये थोड़े ही देर में कि वो उनसे जुदा नहीं होना चाहते थे। तो उस दिन काफी भीड़ थी स्टेशन पे। तो कहते हैं इतने में देर में एक जोड़ा पति पत्नी आए और महाराज से मिलने की गुजारिश करी। तो महाराज जी ने उनको अपने पास आने दिया और पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया की शादी हुई है, जब से शादी हुई है तो ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं, अभी उसको वो हमारे घर छोड़ गए हैं तो लेने नहीं आते। तो हमने बहुत ट्राई करी है लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनते। तो महाराज जी ने उनकी तरफ देखा तो बोला, आप जाओ, तो 2 महीने के अंदर अंदर वो खुद आएंगे, आपकी बिटिया को ले जाएंगे, तो आप इनकार मत करना। तो जानी जान, देखो उनको सब पता है। तो महाराज जी तो टाटा नगर से विद्या ली तो दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली स्टेशन पे आए तो आगे फिर देखा कि वहाँ काफी भीड़ थी संगतों की, सेवादारों की। और सबसे जो बड़े सेवादार गुजराल ठकुराल जी, जो मैंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे कि उनको
महाराज जी ने कहा था टिकट मिल जाएगी, टिकट मिल गई, वो जीत गए। तो वो वहां आए थे और वहां वो कितने कहते हैं मिठाई के डिब्बे लेके आए थे, तो महाराज जी के आगे अर्पण करे। तो महाराज जी ने कहा कि ये सारे डिब्बे जो ट्रेन खड़ी है उसमें बैठे मुसाफिरों को बांट दो। और ऐसा ही उन्होंने किया कि सब मुसाफिरों को बांट दिए। और हुजूर को महला क्या कहते हैं फूलों की माला पहनाई गई उस टाइम में। सो फूलों में याद आया कि बाद में महाराज दर्शन दास जी ने इंग्लैंड में एक बार अपने सत्संग में कहा था कि जब महाराज जी ने कई रूल रेगुलेशन दिए थे तो कहते थे कि फूल जो है वो बागों की शोभा है, चमन की बहार है, तो ये वही शोभा देते हैं, यहाँ मत लाया करो। तो महाराज जी ने मना किया था कि कोई भी सेवक फूल नहीं चढ़ाएगा, फूल नहीं लेके आएगा हमारे दरबार पे, क्योंकि फूल जो है वो बाग की शोभा है और बगीचे की शोभा है, तो यहाँ मत लाओ, हमारे चरणों में मत डालो। तो ये महाराज दर्शन दास ने कहा। तो इसके साथ उन्होंने एक साकी भी सुनाई कि एक राजा था और उसको रात को 1.25 मन गुलाब के फूलों के बिस्तर पे नींद आती थी। तो जब उस टाइम के फकीर को पता चला कि ये तो बहुत गलत है, कि ये तो जो ये बागों की शोभा है ये उसको उजाड़ के अपने बिस्तर का शेष बनाते हैं, ये अच्छा नहीं, तो इसको सबक देना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, कहते वो फकीर अपने राजे के महल की तरफ बढ़ा और क्योंकि उसको आने की इजाजत थी तो उसको अंदर आने दिया। तो अंदर आके वो जहाँ राजा था उधर चले गया, तो इधर उधर ढूंढने लगा। तो राजा बोला, अरे भाई आप क्या ढूंढते हो कि फकीर जी आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो बोले कि मेरी डाची गुम हो गई है, डाची मेरी ऊँटनी कैमल जो गुम हो गई है, तो उसको ढूंढ रहा हूँ। तो वो कह रहे, अरे आप कैसे मूर्ख हो, अरे वो गुम हो गई है, वो कहीं जंगल में होगी, कहीं बाहर वीराने में होगी, खेतों में होगी, इस महल में थोड़ा होगी, महल में ऊँटनियां थोड़ा आती है। तो तब उस फकीर ने कहा, राजा अगर आप वो जो बगीचों की शोभा है, जंगल के फूल हैं, आप उसको अपने बिस्तर पे डाल के सोते हो, अगर आप वो सो सकते हो तो मेरी ऊँटनी यहाँ क्यों नहीं हो सकती? वो जंगल में, वो बाहर खेतों में क्यों होगी, वो वहाँ महलों में क्यों नहीं हो सकती? तो फिर वो राजे को समझ आ गई कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। और उसने उस दिन से गुलाब के फूलों के ऊपर या जो भी फूलों के ऊपर सोते थे, सोने से मना कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं, ये वहां की शोभा है। सो इसलिए महाराज जी ने कहा कि नहीं, आप फूल माला ना लाओ, हमारी फोटो पे भी फूल नहीं चढ़ाने, हमें धूप बत्ती नहीं करनी, ये सब महाराज जी लिख के गए हैं, कह के गए हैं। सो उस दिन तो माला पहना दी क्योंकि नए नए थे, तब रूल रेगुलेशन नहीं बने थे। तो महाराज जी ने जब इंग्लैंड 3 साल गुजारे, वहां अपने मिशन के रूल रेगुलेशन दिए, हमारे मिशन में क्या होगा, हमारे मिशन में क्या क्या चीजें होंगी। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी गद्दी के ऊपर जो पीले टावल वाली फोटो वो होगी, और जो लॉकेट वाली फोटो है वो हर घर में होगी। सो काफी हदायतें महाराज जी दी। तो ऐसे ही महाराज जी ने जब उनको स्टेशन पे आशीर्वाद दिया तो कहते हैं जब महाराज जी और डैडी जी सब आ गए डेरे में, तो कुछ दिनों के बाद चिट्ठी आई, पत्र आया एक, कि आपकी पार कृपा हुई, हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले आपके जाने के बाद ही कुछ वीकों में ले गए। तो वो बहुत सुखी है। जो पेरेंट्स आपको बताया कि टाटा नगर स्टेशन पे मिलने आए थे महाराज जी को, तो उनकी बिटिया ससुराल वाले नहीं लेके जा रहे थे, तो वो भी अपने ससुराल में चले गई। देखो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। तो फिर हम इनका नाम क्यों ना लें? अरे हमारी तो जीवा क्या है, हमारा रोम रोम दर्शन 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 दर्शन, तान दर्शन तान दर्शन तान दर्शन तान दर्शन करता थकना नहीं चाहिए। सो आज के लिए इतना ही।
तो फिर आपको मिलते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को गुरु महाराज के साथ जोड़ना, ना कि तोड़ना। ठीक है? मेरे में कोई इतनी लियाकत नहीं है कि मैं आपको कोई ज्ञान दे सकूँ। जो कुछ मैं आपको कहता हूँ, ये सब गुरु महाराज जी की ही शिक्षा दी हुई है। जो मैंने उनसे सीखा है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने अपने जीवन में उसको कैसे डालना है। दूसरा, जो बाबा जी के बारे में, जो हमारे मिशन में बाबा जी महाराज जी ने बनाए थे, तो उनकी मैंने जीवन कथा शुरू करी थी। तो जो तो नहीं है उनके बारे में तो मैंने बता दिया है, लेकिन जो हैं उनके बारे में मैं उनकी परमिशन के बिना नहीं बात कर सकता। तो मैंने उनसे निवेदन किया है, जिनके बारे में लिखा है कि भई आप बताएँ कि हम आपकी ये जीवन यात्रा इस पे बता सकते हैं कि नहीं? तो अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए जो बाबा जी हैं अभी जीवन में, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता जब तक वो ना कहें। हाँ, बहुत अच्छा होगा अगर वो खुद आके यहाँ कहें, मैं उनसे पूछूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा कि वो अपने जीवन के बारे में महाराज जी के साथ कैसे आए, कैसे वो कहें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आस करता हूँ कि वो ज़रूर एक दिन आके यहाँ कहेंगे। आप लोगों को भी किसी को महाराज जी के बारे में कहना है, तो प्लीज़ आप फ़ोन कीजिए 07735375638, ठीक है? तो आपकी भी इंट्रो की जाएगी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला रहमतां करदा ए झोलियां भरदा ए पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा दर्शन बाबा ए रहमतां करदा ए नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला धन गुरदर्शन।